Welcome back, dear students. We are in polynomial and in part 4 I am going to discuss about some more examples based on the formulas of polynomial for factorization. So the formulas are a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. A square minus b square is equal to a minus b and a plus b. A cube plus b cube is equal to a plus b bracket a square minus ab plus b square. Always keep in your mind these brackets should be like this. A cube minus b cube is equal to a minus b, a square plus ab plus b square. A plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac. A plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. A minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab a minus b. A cube plus b cube plus c cube minus 3abc is equal to abc plus में and a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac, and the special case, that is if a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Now the question may be, it may be given like this and you have to expand. तो expand कैसे करेंगे? According to the formulas. And secondly, the question may be given like this and you have to do the factors. तो उस केस में you just have to identify the form कि अगर ये लिखा हुआ है तो आपको ये identification होनी चाहिए कि ये इसके इस फॉर्म में बनेगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं. आइदर यू कैन लर्न द फॉर्मूला बाय राइटिंग ऑन द पेपर और बाय रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन. इफ यू हैव टू सॉल्व 997 स्क्वायर, देन इफ द क्वेश्चन सेज सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो उस केस में आपको क्या करना है, आप इसको 997 को एक ऐसा नंबर अज्यूम कर लो जिसका आपको स्क्वायर आराम से आता हो. ठीक है, अब कुछ बच्चे हो सकता है इसको 990 प्लस 7 करें तो यू नॉर्मली डोंट रिमेम्बर द स्क्वायर ऑफ 990. ठीक है, तो इसको आपको अपने दिमाग से इस अकॉर्डिंग लिखना है. जैसे मैंने यहाँ लिखा 1000 माइनस 3. यू नो दैट 1000 स्क्वायर इज वेरी इजी. ठीक है, और 3 का स्क्वायर भी बहुत इजी है. दोनों ही आपको लर्न होंगे. ठीक है, अब ये फॉर्म कौन सी बन रही है? द फॉर्म इज a माइनस बी होल स्क्वायर. देखो यहाँ पे ये a है, ये b है, बीच में माइनस है और ये होल स्क्वायर है. एंड द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्मूला इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो अब आपको ये यहाँ पे रखते हुए क्या करना है, जस्ट यू हैव टू प्लेस a की जगह क्या रख देना है 1000. एट द प्लेस ऑफ b आपको क्या रख देना है 3, और जहाँ पर भी 2ab है वहाँ पर a और b दोनों रख देने हैं. ठीक है, so it is equal to 1000 square minus 2 1000 into 3 plus 3 square. so 1000 square क्या होगा, ये 3 zeros और यहाँ पर ऐड हो जाएंगे. ठीक है, तो 6 टाइम्स zeros माइनस 3 2 जा कितना होगा 6, और 6 into 1000 is 6000 plus 9. so this is equal to 100009. जब ये दोनों मैंने ऐड कर दिए तो ये 9 आ गया यहाँ पर minus 6000 and it is equal to 994009. You can also solve this directly by multiplying 997 by 997, but when the question says solve this with the help of algebraic identity, then you cannot apply that particular method. In that case you have to solve by this method. Now next is 3a minus 2b whole cube. Okay, this is given and it question says expand the given polynomial. अब आपको इसको पहले देखते ही सबसे पहले फॉर्म इसकी याद आ जानी चाहिए. एंड द फॉर्म इज a माइनस बी होल क्यूब. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सेज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b. अब आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में a के प्लेस पर लिखा हुआ है 3a, तो जहां पर भी इस फॉर्मूले में a है, at that place you have to put 3a.
and wherever the formula has b you have to place 2b. क्यों? Because whenever we are comparing the question with the standard form, so here you have to compare a with 3a and b with 2b. ठीक है, जो भी a की जगह लिखा है वो a है और जो भी b की जगह लिखा है वो b है. तो यहाँ पर a के प्लेस पे मैं लिखने वाली हूँ 3a क्यूब. ठीक है, और एट द प्लेस ऑफ b, अब यहाँ पे आपको साइन को साथ में नहीं रखना है. ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस आया है ऑलरेडी इस साइन की वजह से ही आया है इस फॉर्मूले में. तो 2b होल क्यूब, फिर माइनस है 3 है तो 3 लिखा, a है तो a की जगह 3a लिखेंगे, b की जगह 2b लिखेंगे. देखो ये लिखा मैंने. उसके बाद a माइनस b की जगह क्या लिखेंगे, जो भी ये है 3a माइनस 2b. ठीक है, ये लिख दिया 3a माइनस 2b. अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27 और a क्यूब. ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 क्यूब इज 8 b क्यूब, माइनस 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18. सो 18 ab और ये 3a माइनस b. अब आपको इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करा देना है. ठीक है, तो 18 इंटू 3 कितना होगा 54, a इंटू a कितना होगा a स्क्वायर और b, और इसी तरीके से माइनस 18 एंड माइनस 2 कितना होगा प्लस 36, a b इंटू b कितना होगा a b स्क्वायर. सो दिस वे 3a minus 2b whole cube is equal to 27a cube minus 8b cube minus 54a square b plus 36ab square. Okay, now let us take example another, that is factorize 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. अब आप सोच रहे होंगे कौन सी फॉर्म हो सकती है. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि ये 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 का क्यूब लिख दिया. नाउ 125 विल बी अ क्यूब ऑफ 5 एंड a क्यूब इज क्यूब ऑफ a, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5a क्यूब. ओके, अब यहाँ देखो, इज देयर एनीथिंग कॉमन इन दीज टू टर्म्स. तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखकर जब आप निकालेंगे कॉमन, तो आप देखेंगे एक तो a कॉमन आएगा, उसके बाद इन दोनों में से 45 कॉमन आएगा, और पीछे जो बचेगा इन दोनों में दैट इज 3 माइनस 5a. अब आप जरा इस फॉर्म को इस फॉर्म से कंपेयर कर लो एक बार. यू विल फाइंड दैट एट द प्लेस ऑफ a क्यूब देयर इज 3 क्यूब, एट द प्लेस ऑफ b क्यूब देयर इज 5a क्यूब, एट द प्लेस ऑफ 3ab देयर इज 45a, एंड एट द प्लेस ऑफ a माइनस b देयर इज 3 माइनस 5 है. तो ये फॉर्म यही फॉर्म है. तो इसको सॉल्व करके आपके पास ऐसी फॉर्म आएगी. ठीक है, उसके लिए अब हमें सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेना है इसको. तो यहाँ पर हम इसको लिख रहे हैं 3 इंटू 3 इंटू 5. अब मैंने 3 फॉर्मूले का 3 है ये देखो. ठीक है, दूसरा 3a है जो कि कहाँ से आया है ये, और दूसरा क्या आना चाहिए b, दैट इज यहाँ पे b की प्लेस पर क्या है 5 है, तो ये a. ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करोगे इस फॉर्मूले से तो आपको सेम टू सेम मिल गया. तो इसका मतलब है इसको हम समराइज कैसे करेंगे 3 माइनस 5a होल क्यूब लिख के. ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हो गए कि 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर के फैक्टर क्या हो गए 3 माइनस 5a होल क्यूब. और होल क्यूब का मतलब है 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a. लेट अस टेक अनदर फॉर्म दैट इज 1 प्लस 64x क्यूब. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 प्लस 64, 1 किसका क्यूब है, 1 अपना क्यूब होता है. ठीक है, 64 किसका क्यूब है, इट विल बी क्यूब ऑफ 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64. तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, ये फॉर्म बनेगी a क्यूब प्लस b क्यूब. और एक्सपेंशन क्या होगा इसका, एक्सपेंशन होगा a प्लस b एंड a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर. और वी कैन ऑल्सो से दैट इसके फैक्टर्स ये होने वाले हैं. तो इसको पहले तो इस फॉर्म में लिख लो जैसा मैंने लिखा 1 क्यूब प्लस 4x क्यूब. ठीक है, अब आपका a तो 1 है और b आपका 4x है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपको लिख देना है a की जगह 1 लिख दोगे प्लस b की जगह 4x लिखोगे. फिर यहाँ पे a स्क्वायर आना चाहिए तो 1 स्क्वायर यानी 1. ठीक है, माइनस ab तो 4x इंटू 1 कितना होगा 4x होगा, प्लस b स्क्वायर तो b क्या है आपका 4x, तो इट विल बी 16x स्क्वायर. दिस वे सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व. अब इस एग्जाम्पल में देखो इट इज क्वाइट ट्रिकी. तो इसमें आप देखोगे 2a टू द पावर 7 माइनस 28a. अब ना तो ये किसी का क्यूब है, ये 2 भी किसी का क्यूब नहीं है. ठीक है, लेकिन एक चीज है, अगर हम इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं और a भी कॉमन ले लेते हैं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे बचेगा a की पावर 6 और यहाँ बचेगा 64 एंड 64 विल बी 2 टू द पावर 6. ठीक है, फॉर्म कौन सी बनेगी a क्यूब माइनस b क्यूब, और उसका फॉर्मूला होता है ये. तो पहले तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन टर्म है उसको यहाँ लिख दिया 2a.
उसके बाद जो पीछे बचा उसको मैंने ऐसे लिखा a टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 6। अब आपको ये पता है फॉर्मूला तो a क्यूब और b क्यूब के लिए है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तो a की पावर 6 है, तो अब हम इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर की पावर 3। ये मल्टीप्लाई होके तो a की पावर 6 ही रहेगा, लेकिन अब अगर आप इसको यहाँ से देखोगे समथिंग की पावर क्यूब माइनस समथिंग की पावर क्यूब, यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका a क्या है, a स्क्वायर है, और b क्या है, 2 स्क्वायर है, और हम कह सकते हैं 4 है। अब यहाँ पर हमने लिखा, उसको एक्सपेंड किया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a माइनस बी की जगह a स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आएगा, ठीक है। मैं इसको 4 नहीं लिख रही हूँ, उसके पीछे रीजन है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, तो आपका a क्या था, a स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर होगा तो a की पावर 4 आएगी, प्लस ए बी, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी 16। अब आप ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, यानी इसका एक्सपेंशन क्या होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो इसलिए इसको मैंने 4 नहीं लिखा था। तो यहाँ पर है ये 2a, और ये दोबारा से फॉर्मूला है तो ये होगा a प्लस 2 और a माइनस 2, और ये जो कंप्लीट टर्म है a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 16। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे इट इज लुकिंग लाइक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप सोचोगे क्वाड्रेटिक में तो a स्क्वायर होता है, तो आप इसको a स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, प्लस मतलब इसको हम a स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो मैं लिया x मान लिया, तो आपका ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16, और उसको आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टर करके उसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो इफ यू वांट टू डू। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट दैट a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 एंड a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। इस तरीके से 2a टू द पावर 7 माइनस 128a के फैक्टर्स होंगे ये 2a, a प्लस 2, a माइनस 2, a square plus 2a plus 4, a square minus 2a plus 4. Now the next question is, if x plus y is equal to 12 and xy is equal to 27, find the value of x cube plus y cube. अब सबसे पहले तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो लिख लो, तो मैंने यहाँ लिख लिया a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम इसको x प्लस वाई के टर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, तो ये तो आपके पास है 12, ठीक है, और एक्स वाई यानी ए बी है, तो ए बी की जगह आप क्या लिख दोगे 27। लेकिन आप इसके लिए क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए, तो इसके लिए करने का मेथड है कि हम क्या करें, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर करके ये जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ पे माइनस 3ab है, तो 2ab से माइनस 3ab जाएगा तो माइनस का ab बचेगा, यानी ये यही फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसको मैं x और y की टर्म में लिख रही हूँ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब आपके पास x प्लस वाई की भी वैल्यू है एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्स वाई ऑल्सो, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रखोगे, x प्लस वाई की जगह 12, यहाँ पे 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27, और जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 756। सो वी कैन से दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 756। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टराइज a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। अब ये फॉर्म जब 4 टर्म है और क्यूब क्यूब की टर्म आ रही है और 1 तो अपने आप में क्यूब होता है, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये फॉर्म हो सकती है, ठीक है। फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है। अब इन सभी फॉर्म्स को पहले तो आप ऐसे लिख लो, a क्यूब माइनस या प्लस लगा के, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही लगा लो, और इसके साथ ब्रैकेट में अंदर माइनस लिख दो, प्लस 1 क्यूब प्लस या माइनस लिख लो माइनस 3, और ब्रैकेट में a और माइनस b, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको देखो तो कैसे लिखोगे, जो माइनस के साथ है उसको माइनस के साथ ही लिख दो, ठीक है। a जैसे यहाँ पे था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे इसके पास माइनस है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे a माइनस बी प्लस 1। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस ए बी है तो माइनस, तो ये फॉर्मूले का ही है a, और b आपके पास माइनस का है तो यहाँ पे माइनस b आएगा, ठीक है। फिर माइनस
b क्या है, माइनस का है, c 1 है, और इसी तरीके से माइनस a और 1। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे a माइनस बी प्लस 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस, तो ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2y माइनस z एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz प्लस zx। अब ये फॉर्म देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इसके जैसी फॉर्म है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल इसके जैसी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा कि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो पहले तो इस फॉर्म को इस फॉर्म जैसा बना लो आप। तो क्या करें, x माइनस 2y माइनस z है, उसके बाद अब यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये आपका माइनस का होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है, इसका मतलब ये भी माइनस का होगा, ठीक है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखा, x आपका प्लस का है और y आपका क्या है, माइनस 2y है, ठीक है। जो भी एक्चुअल यहाँ पे माइनस साइन है उनके साथ ही यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर से माइनस है तो b की जगह 2y लिखोगे और c की जगह माइनस z लिखोगे, फिर माइनस है, c की जगह माइनस z लिखोगे और a की जगह x लिखोगे, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको दोबारा यही मिल जाएगा, देखो माइनस और माइनस प्लस 2xy दिख रहा है, उसके बाद माइनस और माइनस और माइनस, तो माइनस का 2yz, ओके, एंड माइनस माइनस यानी प्लस zx। तो इस तरीके से ये फॉर्म बिल्कुल इसके जैसी बन गई। तो हम क्या कहेंगे कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस जो भी है ना ये हमारे पास, ये इनका क्या कर देना, हमें क्यूब कर देना है इसके अकॉर्डिंग, और फिर माइनस का 3abc भी कर देना है। तो x का जगह x क्यूब आएगा, उसके बाद प्लस है और माइनस 2y का क्यूब आएगा तो माइनस 8y क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस z का क्यूब आएगा तो माइनस z क्यूब हो जाएगा, और 3abc लिखेंगे तो 6xyz हो जाएगा, ठीक है। नाउ लास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, फैक्टराइज p माइनस क्यू होल क्यूब प्लस q माइनस r होल क्यूब प्लस r माइनस p होल क्यूब। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनका क्यूब एक्सपेंड करके फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा। एंड एक्चुअली दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस फॉर्मूला विच सेज इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पर हम a को मान लेते हैं p माइनस क्यू, b को मान रहे हैं q माइनस r और c को अज्यूम कर रहे हैं r माइनस p। अब जरा एक बार a प्लस b प्लस c करके देख लो, क्या ये 0 तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ मैंने रखा p माइनस क्यू प्लस q माइनस r प्लस r माइनस p, एक दूसरे से कैंसिल होके ये 0 आ गया, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। अब इसका मतलब है इन सब का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3abc। तो 3 a की जगह p माइनस क्यू, b की जगह q माइनस r और c की जगह r माइनस p। इस तरीके से इस फॉर्म को देखकर ही आपको पहचान जाना है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ये बहुत इजी है इफ यू लर्न, एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व टू आइडेंटिफाई द फॉर्म इफ यू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ पॉलिनोमियल। प्रैक्टिस द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज and keep practicing because practice is the only thing which can improve your mathematics. Thank you for watching.